Hello. So I hope this particular guidelines are with everyone, correct? So whatever we have read this week, okay, so there will be a small quiz on that. So please be mentally prepared that maybe by next week or next week, next to next week, there will be a quiz and that will be a surprise element. So please start reading these materials. Now again, intrinsic value and the stock market. I think I have defined intrinsic value. What is intrinsic value, Sarthak? So the true value of a thing or an asset. True value of an asset, right? Now there is a particular saying that market value tracks ROIC, that is return on invested capital, and growth. Now why it is told so? Because the value of any company is reflected in the valuation levels of the market as a whole. Now why it is told like that? Can somebody tell me? So because market is the summation of all the industries. Market is a summation of all the industries, but see, कोई एक कंपनी को ले लेते हैं एज एन एग्जांपल, तो उसका जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट. ये कैसे ट्रू है? थोड़ा सा प्रूफ करके बताओ मुझे. कोई एक एग्जांपल मुझे देके बताओ. आप लोग किए हो ये चीज, बट आप लोग बोल नहीं रहे हो. प्रॉब्लम ये है. You have done it, but I don't know why you guys are not telling it. Yes, Abhinav, Shivek. सर आप किस चीज का एग्जांपल पूछ रहे हो? जैसे कोई एक जैसे मान लो कि एक मार्केट को कंपनी है, explain कर- XYZ कंपनी है, ठीक है. यस सर. तो वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, मान लो कि उसका प्रॉफिट अगर हाई जाएगा, ठीक है, तो वो मार्केट में Okay. उसका शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा. यही Yes, sir. ये फर्स्ट लाइन बता रहा है. तो सर जैसे सेंसेक्स होगा, निफ्टी होगा, जो मार्केट इंडेक्सेस है, हाँ, बट हाउ? जैसे उनकी परफॉर्मेंस होगी. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि कौन सा चीज. अर्निंग्स तो मैंने आपको ऑलरेडी एक हिंट दे चुका हूँ. There is something, a measure called EPS. How many of you know that? अर्निंग पर शेयर. Yes, हाँ. sir. P. So you are asking about P ratio. उसी पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में. तो ये जो EPS है, how do you calculate this EPS? Amount available for shareholders divided by number of shareholders. Yes. अब divided by Number of shares. That means divisible profit divided by number of outstanding shares. यही तो बोलना चाह रहे हो ना? यही है ना? हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Divisible profits divided by number of outstanding shares. That is what? The EPS of the firm. Correct? अगर एंड EPS भी बहुत तरीके का होता है. कितने तरीके का होता है EPS? तो दो तरीके. क्या क्या? नॉर्मल एंड डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? डाइल्यूटेड अगर सारी
जो सिस्टर सब्सिडरीज हैं, जो भी हम सबको इंक्लूड करके होता है, यस। नहीं नहीं, डाइल्यूटेड होता है तो सारे कन्वर्टेबल शेयर्स वाले होते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, कोई जिसका कन्वर्टेबल राइट्स हो। ओके। और एक ईपीएस भी है, कैश ईपीएस, देखना कभी पढ़ के, ठीक है। तो 3 तरीके का ईपीएस होता है। तो ये ईपीएस को कभी कभार हम मार्केट वैल्यू पर शेयर से भी कंपेयर करते हैं, है ना, जिसे हम पीई के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पीई? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। यही तो फॉर्मूला है, यस और नो? Yes or no? Yes, sir. So what is this particular ratio trying to tell us? What is this telling? What is this particular ratio trying to tell us? अरे बोलो भाई, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो रियली मुझे बोलना पड़ेगा कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। बोलो। हाउ अर्निंग्स आर रिफ्लेक्टिंग द मार्केट प्राइस, यही तो है। सर अगर अर्निंग्स ज्यादा होगी तो पी बढ़ जाएगा ना सर। What is the formula for PE? Market price per share divided by earning per share। तो यहाँ पे शेयर तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ मार्केट प्राइस एंड अर्निंग्स। यस और नो? यस और नो? यस सर। So this is what this first line is telling, that earnings are what? E is the performance of the company or the firm, and MP is what? MP is the market price. So it directly means that the profitability of the firm will increase the value of the company. And if say EPS is high, okay, and MPS is low, what an investor needs to do? Tell me that. सर बाय द शेयर। हाँ जी, बाय द शेयर सर। buy the share. Why buy the share? Sir, because PE ratio will be lower. It will be at a discount. It will be at a discount. So it means that if the EPS is high and PE is low, it means that the share is underpriced. Correct? Share is underpriced. And in the long run, the company will outperform the earnings. Is it clear? In the long run, it will outperform the earnings. The second point is telling companies with higher ROIC. Now, how to calculate ROIC? Yes, can somebody give me some inputs? How to calculate ROIC? What is ROIC? What is the full form of ROIC? भाई साहब, ये चीज अगर टिप्स में नहीं रहा तो फाइनेंस पढ़ना बहुत मुश्किल है। आरओआई का मतलब तो सब कोई जानते ही होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना तो वो 3 लाइन तो आता ही होगा।
Yes, sir. और C stands for क्या? Capital. Capital. So return on invested capital. Now what is an invested capital? Capital employed. क्या है क्या capital employed? So shareholder or debt. Equity plus debt. Equity plus debt. Internal financing कुछ लोगे या नहीं लोगे? So retained earnings. हाँ जी? Retained earnings जो invested है. अच्छा. और रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करोगे? रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करोगे? हियर रिटर्न मींस व्हाट? यस गुप्ता जी. रिटर्न का Sir, यूज NOI net operating income divided by the capital employed total. नेट ऑपरेटिंग इनकम. नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे एनओआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताओ. मोस्ट ऑफ द टाइम अब आप लोग आंसर दोगे मुझे. So operating revenue minus operating cost और उस पे टैक्स माइनस करके. कैन आई से दिस? Can I say this statement? NOI is equal to NOPLAT equals to NOPAT. Yes, sir. Yes, sir. अब तीनों सेम है या तीनों डिफरेंट है? बोलो. आप लोग जवाब दो. तीनों सेम है या तीनों डिफरेंट है? Sir, what does L stand for? नेट. एल क्या? एन पूछ रहे हो या एल पूछ रहे हो? L, sir, L. एल स्टैंड्स फॉर लेस. नोप्लैट का पूछ रहे हो ना? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस. So first and third to same है. फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम है ये बोल रहे हो. बट नेट ऑपरेटिंग इनकम इज ऑल्सो नोन एज EBIT, है ना? यस और नो? नेट ऑपरेटिंग इनकम को तो EBIT भी बोलते हैं ना? यस और नो? Yes, मैंने sir. हाईलाइट किया अभी. Yes, sir. Yes, sir. So how can EBIT be equal to NOPAT? देखो So हर it cannot be equal to no. एग्जैक्टली. तो तीनों टर्म से डिफरेंट है. पहली बात तो ये. ओके. तीनों के तीनों टर्म डिफरेंट है. नेट ऑपरेटिंग इनकम मींस EBIT. दैट्स इट. इसे छोड़कर और कुछ नहीं है. बाकी ये जो NOPLAT है ये भी डिफरेंटली कैलकुलेट होता है. NOPAT भी डिफरेंटली कैलकुलेट होता है. बट फाइनेंस के लैंग्वेज में आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम देख के कि किसको आपको यूज करना है. अगर प्रॉब्लम से आप NOPLAT निकाल सकते हो तो यू हैव टू कंप्यूट NOPLAT.
अगर प्रॉब्लम में आप देखते हो कि नहीं, इस प्रॉब्लम से मैं सिर्फ नोपैट ही निकाल सकता हूं, तो नोपैट लिख के आपको काम करना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम में एकदम कुछ भी नहीं है, then you have to take only EBIT and you have to work on. Is it clear? Is it clear? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सारे जो पॉइंट्स मैं अभी आज हाईलाइट किया, इन सब के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा पढ़ो, एक नोट्स बनाओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस EBIT, NOPLAT एंड NOPAT, क्या डिफरेंस है। एंड ओरिजिनल बैलेंस शीट निकालो, निकाल के इसे कंप्यूट करके देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है तीनों में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? When will you do this exercise and give it to me? अब अगर देख लो कि ये तीन प्रॉफिट्स अगर डिफरेंट है, तो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो मेजर है वो भी डिफरेंट होगा या नहीं होगा? इफ द न्यूमरेटर डिफरेंट होगा वैल्यू सर। डिफरेंट होगा, और इन्वेस्टर को कौन सा अच्छा लगेगा, जिसमें ज्यादा वैल्यू होगा या कम वैल्यू होगा? सर ज्यादा। एग्जैक्टली। तो दिस इज द ट्रिक व्हाट यू नीड टू लर्न। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड कंपनी एंड अ बैड कंपनी? अगर एक गुड कंपनी होगा तो ये तीनों मेजर में ही उसका अव्वल दर्जे में नंबर आएगा। बट एक बैड कंपनी में क्या होगा, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर EBIT अगर लेते हो तो देखोगे कि वाह, रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, बट जैसे ही आप NOPLAT और NOPAT को देखोगे तब देखना कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हाल है। तब आपको ओरिजिनल चीज समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात है कंपनी के अंदर। So this is why valuations are very important in analyzing the performance of a company. Okay. So this is the first case. Next is market reflects substance not form. अब मान लो कि बहुत सारे लोग ये बिलीव करता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर अच्छा हो तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट प्राइस में करेगा, और ये करता भी है। इट इज नॉट फॉल्स, इट इज ट्रू ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का क्वार्टर 3 का मान लो कि रिजल्ट आएगा, तो जैसे ही क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया वैसे ही इन्वेस्टर्स क्या स्टॉक प्राइस के ऊपर ताक झांक करेंगे कि भाई इमीडिएटली परचेज इन्फोसिस, बिकॉज इस साल भी उसने 20% या 30% प्रॉफिट रजिस्टर किया होगा। तो जैसे ही वो न्यूज मार्केट में आया तो तुरंत क्या हुआ, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? हेलो, बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। देखो यहाँ पे सर रिटर्न बढ़ेगा तो yes. बढ़ेगा ना? Yes, sir. एंड प्लीज ये ऑनलाइन क्लास अब मैं ना बंद कराने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, आई कैन नॉट टेक दिस, यू कैन से पैथेटिक ऑनलाइन क्लास, क्योंकि आप लोग ना तो इंटरेक्ट करते हो, ठीक है? तो प्लीज क्लास में आना शुरू कर दो। तो ये जो 30% प्रॉफिट जो भी हो रहा है, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि प्रॉफिट इज ए पास्ट एक्टिविटी जो आप पहले कर चुके हो। बट आने वाले टाइम पे शेयर प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा? बोलो, क्या अदर पैरामीटर्स होगा? Sir return on equity. रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, पहला चीज है प्रोजेक्ट्स। कोई भी IT कंपनी हो उसके पास प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट्स नहीं है तो क्या उसका इनकम भी नहीं है? हाँ या ना? Order book. Yes, sir. Order book. एग्जैक्टली, ऑर्डर बुक या अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है ये आपको देखना पड़ेगा।
This is the main thing. This is how you should read a company, स्पेशली उन कंपनीज को जिनका सिर्फ क्या इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम. जैसे बैंकिंग हो गया, बैंक्स के पास कितना ऑर्डर्स है, बैंक्स के पास कस्टमर बेस कितना है, नए प्रोडक्ट्स कितना लॉन्च किया है बैंक ने. दीज आर इंडिकेटर्स. ये इंडिकेटर्स आपको ट्रेडिशनल जो रेशियो एनालिसिस या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बुक्स में वो मिलेगा नहीं. एंड इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इतना ज्यादा कीमत है, या फाइनेंशियल एनालिस्ट का इतना ज्यादा कीमत है, मुंह मांगा सैलरी मिलता है. इट इज द ओनली थिंग. बट द ओनली थिंग इज दैट आपका जो बेस है वो बेस बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. Another very important thing is that कि इमोशंस एंड मार्केट प्राइसिंग. बहुत बार ऐसे भी आपने देखे हो कि जब स्टॉक मार्केट ज्यादा गिरने लगता है तो लोग क्या डर के मारे बेचना शुरू कर देते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद आप सोचते हो कि इस पॉइंट के बाद ना और मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा, और आप बेवकूफ की तरह कुछ ना कुछ खरीद लेते हो और खरीद के फंस जाते हो. क्योंकि ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाए तो फिर से क्या धड़ धड़ मार्केट गिरता है एंड आप बेवकूफ की तरह उस स्टॉक को या तो होल्ड करके बैठोगे या तो क्या उसे कम प्राइस में बेच दोगे. तो दिस इज व्हाट मार्केट मिस प्राइसिंग इसे बोलते हैं. और इमोशंस, तो इसे हम जो बिहेवियरल फाइनेंस है, बिहेवियरल फाइनेंस के लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ड बिहेवियर. तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस हार्ड बिहेवियर. क्यों? क्योंकि लोग जिस तरफ चल रहे हैं, जैसे लोग क्रिप्टो 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 करके पता नहीं हमने तो 1.5 लाख बना लिया, हमने 2 लाख बना लिया. ठीक है, पीपल हैव मेड मनी. आई हैव नॉट, बिकॉज देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा मिलता है मार्केट में. बट एट द सेम टाइम उनको पूछो जो मिडिल में एंटर किया विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, जस्ट उस न्यूज को सुन के कि हाँ भाई चल 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 खरीदते हैं. तो वहां पे क्या हुआ कि एक तो उन्होंने पैसा बहुत लगाया, फिर दूसरा जब क्रिप्टो एक दिन में बहुत ज्यादा जब गिर गया ड्यू टू अदर मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, तो क्या उन लोगों को लॉस सफर करना पड़ा. नेक्स्ट सबसे बड़ा चीज ये है सिक्योरिटी नहीं है. क्योंकि आए दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि हैकर्स ने हैक किया और क्रिप्टो करेंसी से $1.5 बिलियन ऐसा कुछ चोरी कर लिया. सो दैट मीन्स व्हाट? इट इज अनरेगुलेटेड. नेक्स्ट, you don't know what is the future of that particular token of money. And last but not the least, your money is not safe as well. आपको आए दिन डर लगेगा कि क्यों कोई मेरा अकाउंट हैक करेगा और हैक करके मेरा सारा पैसा उठा के ले जाएगा. So never go for emotions and always try to judge the market from valuations, not through just news के थ्रू आप उसे मत जज करो. उसको रियलिस्टिक assumptions लो और assumptions लेके जज करो. एनी क्वेश्चंस? तो ये कुछ इंपॉर्टेंसेस हैं. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन यू कैन आस्क, एल्स वी कैन मूव टू अ न्यू यूनिट. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, sir. Anyone? No, sir. Now this is a new unit.
यहीं से आपका मेन वैल्यूएशन अब शुरू होगा। द एंटरप्राइज DCF मॉडल, DCF मीन्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। तो first we will understand that how to analyze historical performance, then we will try to understand how to estimate the cost of capital. Next we will also understand how to forecast performance. एक तो forecasting technique आपको मैं सिखा ही रहा हूँ, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे फोरकास्ट करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द कंटिन्यूइंग वैल्यू, ठीक है, जिसे हम टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर ऑनगोइंग प्रोसेस को कैसे हम और कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये सारा चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कोई भी जब हम पहली बार एक कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जनरली कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी हो, बिजनेस एंटिटी इज परपेचुअल इन नेचर। यही हम पढ़ते हैं ना कि परपेचुअलिटी बोल के एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। हेलो, यस सर, यस। परपेचुअल ओवर हो रहा है क्या? सर 11 तक की थी क्लास आई गेस। हाँ जी, सर हमारी दूसरी क्लास है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट दिन ही इसे शुरू करूंगा, बट थोड़ा सा पढ़ के आना। देखो मेरे क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आपको आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर है, बिकॉज दिस टॉपिक्स were meant to be discussed in the earlier semesters, so I cannot go back and repeat the same topic again and again, correct? तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ टॉपिक्स लाइक रेशियो एनालिसिस हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आओ, एंड पढ़ के आके फिर मेरे क्लास में बैठो। ओके, thank you, let us meet again at when is my next class? I think it is at 12, right? बारह बजे ही था ना मेरा नेक्स्ट क्लास? 12:15 sir. 12:15, okay, let us meet. Thank you everyone. आज आरुषि नहीं है ना सिर्फ? यस सर, थैंक यू।